कॉमर्स नहीं कर सकता। मैं उन्हें आया मैं कॉमर्स नहीं कर सकता। उन्होंने हमारे हाथ देखे, ये हाथ थोड़ा हमारा हाथ है देखो लोगों ने विजन आप विजन यकीन करो। और मैंने ये बहुत ज़्यादा तकरीरों में कहा है, मैंने सुनिए ये बता हमारा हाथ देखने के लिए थोड़ा हमारा हाथ है, ये ट्राई कर तो इसको देती है साइंस लिखा आपके वो दूसरे चाचा थे और इन्होंने मुझसे वादा किया है कि जो उधर कमी बताई होगी उसको हम पूरा करेंगे।
میں نے ان کو ویڈیو شیئر کی ایک لائبریری کی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے، میں نے کہا جی لائبریری ہے، کدھر آئی تھی ایسی لائبریری؟ تو کہنے لگے کہ ملوڈ میں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کس نے بنائی؟ تو میں نے کہا یہ بزرگ ہے ہمارے، ان کی کاوش ہے اسی جگہ جب 47 سے پہلے وہ یہاں بیٹھ کے پڑھے، جس جگہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو انہوں نے آئندہ آنے والی نسل ہے اس کے لیے یہ کاوش کی۔ تو وہ آپ کو بھی دکھانی، آپ کے جو کولیگز ہیں، ٹیچر، اسٹوڈنٹس، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بیسکلی آپ کو یہاں وزٹ کرانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک میرے خیال میں اتنی رچ، اتنی نایاب کتابیں یہاں سلیکٹڈ بکس ہیں، تو شاید یہ پورے آزاد کشمیر میں باقی کسی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھی، آپ کے ساتھیوں نے دیکھی، تو وہ بھی اس پہ بہتر بتائیں گے۔ ہمارا یہ ہے کہ میرے خیال میں ایجوکیشن سائڈ پہ جو اسکول سے شروع ہو کے یونیورسٹی پہ ختم ہوتی ہے، اس سب سے جو بڑی درسگاہ ہے اس کے سربراہ ہے آپ۔ آزاد کشمیر کی پہلی اور سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، ہمیں آپ کی رہنمائی چاہیے، اس علاقے کے لوگوں کو آپ کی رہنمائی چاہیے۔ ہمیں ہمارے ساتھ جو یہاں ٹرسٹی بیٹھے ہیں اور جو ایجوکیشن سے متعلقہ یہاں ذوالفقار صاحب ہیں، ہمارے ہیڈ ماسٹر ہیں، اخلاق صاحب یہاں یہ چوڑ میں یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، موسٹلی یہ ایجوکیشن سے متعلقہ یہاں لوگ آئیں، تو اس کو ہم کیسے آگے کی طرف بہتری کی طرف لے جائیں تاکہ ہماری جو ہونے والی نسلیں ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ باغ یونیورسٹی جو وومن ہے ان کے وائس چانسلر صاحب کو بھی میں یہاں لاؤں گا، اسی طرح جو راولا کوٹ پولیس یونیورسٹی والے ہیں وہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کو بھی میں یہاں وزٹ کرواؤں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مرلوڈ ایجوکیشن کا ایک ہب بنے گا، لوگ آئیں گے یہاں سے سیکھیں گے، اور وقت چونکہ کم ہے، میں جو ہمارے ٹرسٹی ممبر ہیں ان سے گزارش کروں گا، چونکہ ذرا سارے مرد ہی بولتے رہتے ہیں، خواتین کو نمائندگی نہیں ہوتی، تو یقیناً یہاں اس وقت جو ہمارا کمپیوٹر کے تقریباً 1100 لوگوں نے ڈپلوما لیا، تو وائس چانسلر صاحب اس میں 70% بچی ہیں، 70% بچوں نے لیا، 30% جو ہیں جو لڑکے ہیں، اس وقت جو کورسز چل رہے ہیں ان میں بھی بچوں کی تعداد وہ زیادہ ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ اچھا، یہ آپ لوگ اگر پیچھے سے اس طرح ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، آگے کوئی پیچھے سے اگر بنا لیں بہتر ہے، دور سے مشکل ہو رہا ہے، آپ ٹھیک آپ بنائیں اپنی مرضی سے پیچھے بھی مڑ جاؤ گا بول دیتے معزز مہمان خصوصی آپ کا اور آپ کے ساتھ آنے والے تمام ساتھیوں کا میں اپنے ٹرسٹ کی طرف سے شکریہ ادا کرتی ہوں، معززین علاقہ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی گون مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ملوڈ تشریف لائے۔ ملوڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ آپ نے وزٹ کیا، آئی ٹی سینٹر جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میرے یہاں سے سر دیکھنے میں ہی ہم موٹیویشن اسپیکر بھی سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو یہ اپنے آپ میں موٹیویشن ہے، ایک استاد اور شاگرد کا ایک لاجواب داستان۔ تو میرے خیال سے آپ جب کہیں بھی جائیں گے، وزٹ کریں گے، تو ملوڈ ایجوکیشن ٹرسٹ کا اور یہ جو لاجواب داستان ہے استاد اور شاگرد کی، اس کی ضرور آپ مثال دیں گے کہ انتہائی بہترین، جو آپ وہ استاد کتنے عظیم ہوئے ہوں گے اور وہ شاگرد کتنے عظیم ہیں کہ جنہوں نے یہ کار جو ہے وہ سر انجام دیا۔ تو میں سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں ایک دفعہ پھر، کیونکہ ٹائم کم ہے، لوگ دور دور سے آئے ہیں، آپ نے واپس جانا ہے، تو اس وجہ سے راجہ سجاد خان صاحب، معزز ممبران ٹرسٹ اور ہمارے محترم جناب وائس چانسلر جناب ڈائریکٹر صاحب صدیقہ یونیورسٹی، میں اپنے وائس چانسلر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں مہیا کیا۔ یہ جو لائبریری ہے ملوٹ میں، اس کے متعلق میں نے سنا تھا، چونکہ ہم نے ایک سروے کیا تھا آزاد کشمیر کے پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں قائم لائبریریز اور جو نجی شعبے میں ہیں، تو کسی ریفرنس سے اس لائبریری کے متعلق ہمیں پتہ چلا تھا، لیکن یہاں آنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ ہمارے جناب وائس چانسلر کے آپ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں دیا اور یہاں ہم آئے اور ہماری لائبریری کی ساری ٹیم یہاں پہ آئی۔ تو میں نے آج اس کو دیکھا ہے فزیکلی۔ پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر کی لائبریریز ہیں بڑی مشہور ہیں، اس میں عبدالحمید لاکھا کلیکشن ہے، خلیل الرحمان داؤدی کلیکشن ہے، اور اسی طرح دیگرز ہیں، اور کچھ ان میں سے اب ٹرسٹی نہیں رہے تو انہوں نے وہ نیشنل لائبریری میں ضم کر دی ہیں یا پنجاب پبلک لائبریری میں، لیکن عبدالحمید لاکھا کلیکشن
और ये खलील रहमान दाऊदी और इसी तरह कुछ और ये मौजूद हैं, वो भी हमने देखी हुई हैं। मैं यहाँ पे जितनी ये किताबें स्प्रिंगर वर्लाज और जॉन वाइले उनके पब्लिशर्स की किताबें मैंने यहाँ पे देखी और ये बुनियादी तौर पे रिसर्च लाइब्रेरी है, रेफरेंस लाइब्रेरी है, और ये वाकई इतना अच्छी कलेक्शन, इतनी रिच कलेक्शन आज़ाद कश्मीर में कहीं प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं मिल सकती, और ना ही बल्कि पब्लिक सेक्टर में भी इतनी अच्छी लाइब्रेरी कायम करना बड़ी मुश्किल होती है। तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं, और उन लोगों ने जिन्होंने इसमें ऐसा डाला है और जो इसके बानी है, जिन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई है, अल्लाह पाक उन्हें इसका अजर अता फरमाएं। ये बहुत बड़ी इल्मी खिदमत है। हम चूँकि आए हैं तो हमारे वाइस चांसलर साहब ने हमें ये टारगेट दिया है कि इस लाइब्रेरी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो टेक्निकल जो भी हमारी मशावरती तो खिदमात हैं वो आप देंगे। तो सर इस सिलसिले में हमारी एक तंजीम है ऑल ओवर पाकिस्तान के लेवल पे, पाकिस्तान लाइब्रेरियन वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप उसका नाम है, और उसका बुनियादी मकसद ये, मैं भी उसका एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर हूँ, उसका काम यही है कि हम प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में कायम लाइब्रेरीज को रज़ाकाराना तौर पे जो है ना उनको बेहतर करें, उन्हें गाइडेंस दें। और सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा, वैसे तो लाइब्रेरी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं लेकिन 3-4 सॉफ्टवेयर बड़े मशहूर हैं। उसमें कोआ एक सॉफ्टवेयर है जो आजकल सारी यूनिवर्सिटियों में, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में भी वही चल रहा है। वो वैसे तो बड़ा होता है महंगा, लेकिन हमने उस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे वो सॉफ्टवेयर फ्री में हम इंस्टॉल करवा के देते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी इस लाइब्रेरी को भी हम उसी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कराएंगे, इसे नेशनल डेटाबेस में भी शामिल करवाएंगे। और इसके लिए आपके नंबर में ले लेता हूँ, जो हमारी नेशनल डायरेक्टरी है आज़ाद के पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर की लाइब्रेरीज की नेशनल डायरेक्टरी, उसमें मैंने शायद ओजल हो या मैंने ये लाइब्रेरी नहीं देखी है नेशनल डायरेक्टरी में, लेकिन हम इसे नेशनल डायरेक्टरी में भी शामिल कराएंगे। इसका पूरा इंट्रोडक्शन आप मुझे देंगे और वो मैं कल ही भेजता हूँ। कराची से वो पब्लिश होती है, उनको मैं हमारे कराची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाले करते हैं, तो मैं कल ही इसका इंट्रोडक्शन उनको भेजता हूँ। वो नेक्स्ट एडिशन में वो इसे शामिल करेंगे, और वो ऑनलाइन भी दस्तियाब है, हार्ड फॉर्म में भी होता है। इसके अलावा भी जितनी हमसे हो सकी, चूँकि हमारे वाइस चांसलर साहब ने मुझे परसों भी कल भी बुला के ये टारगेट दिया था कि आपने उस लाइब्रेरी के लिए जो कर सकते हो वो करो। तो साफ ज़रा आपने इतनी कलेक्शन, इतनी अच्छी कलेक्शन है, तो हमने अरेंजमेंट ही करनी है और क्या। तो जो हमसे हो सका सर वो हम करेंगे। फ्री इसको सॉफ्टवेयर भी आपको देंगे ताकि नेशनल डाटाबेस में ये शामिल हो जाए, और सारी चीज़ें तो वो मैं नंबर ले लूँगा, तो इंशाल्लाह हम इसमें आप करेंगे। तो आपके शुक्रगुजार हैं जी कि हमें ये मौका मिला। वाइस चांसलर डॉक्टर कुलूम साहब और उनके साथ आने वाले तमाम मेहमानान गिरामी को हम दिल की अखागरियों से खुशामदीद करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारी लाइब्रेरी और IT सेक्टर पर विजिट किया। ये हमारे यहाँ पड़ोस में सज्जाद साहब के बहुत ही करीबी उनके वाले साहब के कज़न हैं बैरिस्टर साग साहब ने अपनी ज़ाती काविशों से और अपना ज़ाती सरमाया तकरीबन लगाकर ये लाइब्रेरी और ये IT सेंटर जो है ज़मीन दोनों जगहों की डोनेशन भी है, थोड़ी सी खरीदी भी है, लेकिन ये कोई तकरीबन 4 करोड़ के करीब जो है जो मैंने ज़ाती जेब से खर्च कर दी, ये सारा सेटअप कायम किए। तो आपको सज्जाद साहब ने दावत दी कि दावत पर आप आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इसका मकसद भी यही था कि आपसे एक तो रहनुमाई ली जाए, और आपकी टीम माशाअल्लाह बहुत अच्छी आप साथ लाए। ये भी आपकी दिलचस्पी का वजह है कि आप कितनी दिलचस्पी है हमारे इस इलाके के साथ और इस सेंटर के साथ। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह हम ये IT का अभी जिक्र हो रहा था कि IT के इंशाअल्लाह हम जो 1 साल का डिप्लोमा या जितना भी है वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करवा के, ताकि ये 3 महीने का डिप्लोमा तो चलो हो जाता है, लेकिन ये है कि वो किसी जगह कारगर नहीं होता है। वो किसी CV में आप डालेंगे तो कोई इतना उसको कंसिडर नहीं करता है। 6 महीने का कम अज़ कम वो 1 साल का हो, या अगर आगे जो है ना इससे मज़ीद बेहतर इसको करके, ताकि हमारे लोग जो शहरों में जाकर मसाइल का शिकार होते हैं, वहाँ रहने की जगह नहीं होती, खाने पीने के मसाइल हैं,
और IT ही ये इस दौर की एक जो है ना सबसे डिमांडिंग चीज़ है। तो जो आदमी IT में बेहतर होगा वही जो है ना ये आगे जो मुलाजमतों में और जो हमारी जो मशीनरी है सरकारी है या प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो है ना उनको जॉब्स मिलेगी और इंशाल्लाह हमारा इलाका इसकी वजह से बहुत तरक्की करेगा। मैं आप सब नजर अब्दुल हक साहब तकरीबन 15 साल तक, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनसे भी गुजारिश करूँगा मैं उनका शुक्रिया अदा करें, वो भी रिटायर्ड। और इनके साथ में गए हैं और हमारे ट्रस्टी और यहाँ हवामा इलाका के लोग हैं। मैं अपनी तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस फंक्शन में तशरीफ लाए। जैसे कि सजाद साहब ने इसका इज़ार किया है कि 2005 में ये आइडिया जो था फ्लोट हुआ था, लेकिन 2006 में हमने इसको रजिस्टर कराया और फिर मुख्तलिफ मराइल से गुजरते गुजरते ये जून समझ लें 2022 में हमने इसकी तामीरात जो है मुकम्मल की। ये दौरानिया बड़ा मैं समझता हूँ सबर आजमा भी रहा, बड़े नशेब अवतार से भी गुजरते थे, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं अब तकमील हो चुकी हैं और अब इनकी मैं कहता हूँ कि सरबराही जो है वो सजाद साहब जो बड़े मुतारक शख्सियत हैं हमारे इस इलाके के हैं। तो मैं क्योंकि जैसे आपको पता है मैं 81 से भी क्रॉस कर चुका हूँ और फिर मुझे कहीं बाहर जाने का भी मौका नहीं मिलता। लोकली जो था वो हमारे बस में हमने कर लिया। अब सजाद साहब बड़े एक्टिव भी हैं, इन्फ्लुएंशियल भी हैं और दारुल हुकूमत में भी रहते हैं। तो मैं साथ साथ उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने थोड़े से अरसे में इसकी बहुत प्रोजेक्शन की है और हम इससे विदा तौर पर तवक्को रखते हैं कि ये इसी टेम्पो को बहाल रखते हुए इसको दिन दुगनी और रात चुगनी इसके जो असल मकासद हैं हम उसकी तरफ पेशरफ्त कर सकेंगे। तो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, मैं जब आया मुझे तो सारा कुछ बना बनाया तो ये सच्ची बात है। आप सारे बुजुर्गों को बिलखुसूस बैरिस्टर साहब आपको क्रेडिट जाता है। बहुत मुश्किलात आपने फेस की, लम्बा बड़ी डेडिकेशन रही, वो लंबी एक दास्तान है, लेकिन सारी चीजें आपने फेस की। तो हमें तो सारा कुछ बना बनाया मिला। दिल तो बहुत करता है कि सब लोगों से बात करवाई जाए। ज़िया अफजल साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं हमारे ट्रस्टी मेंबर, प्रोफेसर एजाज साहब हैं, इसी तरह रिजवान गिरगी साहब हैं और भी साथी। लेकिन वक्त चूंकि कम है, वाइस चांसलर साहब ने वापस जाना है। डॉक्टर न्यूम साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी गुफ्तगू करें, उसके बाद वाइस चांसलर साहब। सबसे पहले तो मैं जो ट्रस्टी के जितने भी मेम्बरान हैं बशमूल उस्ताद प्रोफेसर अब्दुल हक साहब और दीगर मेम्बर इदारे के मुस्तक हैं कि इस दूर दराज इलाके में एक दो अदारे कायम की जो कि इस इलाके की भी ज़रूरत है और सोसाइटी की भी ज़रूरत है। आज का जो दौर है इस दौर में वक्त निकालना बड़ा मुश्किल है। साहब ने बताया कि 2006 से हमने शुरू किया और साथ ज़ाहिर है यहाँ के लोगों के साथ कोऑपरेशन में होगी और बड़ा मुश्किल होता है कि जब एक काम शुरू करें उसकी बुनियाद रखना जो है ना सबसे मुश्किल होता है। फिर आगे जब वो बुनियाद मुकम्मल हो जाती है तो अगले के लिए राजा साहब ने बताया कि अब हमने शुरू किया और आगे जो है सोच रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के जो इलाका है इस इलाके के लिए एक बड़ा एसेट है ये, चूँकि दो जो अदारे हैं जो छोटे छोटे अपने अदारे, और मैं ये समझता हूँ कि ये इतना मुकद्दस काम है कि आज इस वक्त जो लाइब्रेरी है, किताबों से रिश्ता जब से मोबाइल आया है तो किताबों से रिश्ता छूट गया, अब वर्चुअल नॉलेज आ रहा है। नॉलेज जो है वो शॉर्ट टर्म है और किताबों से रिश्ता जो है उस रिश्तों को कायम करने के लिए जो आपने काम शुरू किया है
मैं ये सुनता हूँ कि आप तमाम लोग यहाँ जो इलाके से जितने भी लोग हैं, जितने भी महसूस हैं, जो इसमें जिन्होंने अपना हिस्सा डाला, सब मुबारक है, मुस्तैद है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो है ना यहाँ मैंने देखी है, जिससे बड़ा मैं इम्प्रेस भी हुआ कि आपने 1100 लोगों को ट्रेन किया, शॉर्ट ट्रेनिंग में कंप्यूटर, और आज का दौर जो है वो है ही कंप्यूटर का। और मैं ये समझता हूँ कि एक जिसको कंप्यूटर सही चलाना आता है तो आज उसके लिए जॉब का कोई इशू नहीं है। फ्री लांसिंग में आज लोग जो है यहाँ बैठे हुए, लाखों हज़ारों रुपये जो है बैठे हुए, घरों में बैठे हुए कमाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सोशल जो है ना आपका सोशल वर्क है, और सोशल अपलिफ्ट के लिए जो है ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों के लिए जो ये काम शुरू किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अहम काम आपने शुरू किया। अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, और हमारी तरफ से जिस तरह से हमारी लाइब्रेरी के सामने और बाकी IT के भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको जो ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह भी साहब डिटेल में आपसे बात भी करेंगे। तो मैं एक बार फिर आप इमरान आपको शुक्रिया कि आपने यहाँ हमें इस जगह को देखने का मौका दिया। मैं वैसे क्योंकि साहब ने किताबें रखी हैं, मेरे ख्याल में वाइस चांसलर साहब को ये पेश करना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो अपनी बुक्स जो है, जो कॉलम उन्होंने शाया किए, वो वाइस चांसलर साहब के साथ आए हुए मेहमान उनका शुक्रगुजार, और यहाँ जितने भी तालीमी के जो सरबराह हमारे जो मेम्बरान हैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। आप वाइस चांसलर साहब से गुजारिश है कि वो अपने बात का इजहार करें, और खुसूसी तौर पर शुक्रिया कि वो शॉर्ट टाइम में वो हमारी देखिए, तो ये इनकी किताब साथ इल्म के साथ लाइब्रेरी के साथ मौजूद है, और ये कुदरती जिस तरह बैर साहब ने ये सिलसिला शुरू किया, और मैं समझता हूँ ये आस्ता आस्ता चल रहा है, और इंशाल्लाह जो उनका विजन है जिसको लेके वो चले, इंशाल्लाह हम उस पर कामयाब होंगे। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी मेरे काबिल एहतराम और बड़े हमारे साथ हमारे और हमारे बाकी ट्रस्ट के जितने भी इधर आप मेंबर्स हैं, जो मसला का है, सारे कॉलेज से और एजुकेशन से वाबस्ता हजरात तशरीफ आए, यूनिवर्सिटी से जो मेरे साथ लोग आए, मैं सबसे पहले कोई इसमें मेरा शुक्रिया अदा करने वाली बात, और मैडम ना भूलना बात है, मेरा कोई शुक्रिया अदा करने वाली बात नहीं है। सजाद साहब से हमारा बड़ा एक लंबा तल्लुक है, तो आज का नहीं है 40 साल का। इससे पहले मेरे भाई के राजा आजाद साहब, उनसे मेरे वालिद साहब का बड़ा तल्लुक था, और वो बहुत दफ़ा पैर आएगा, तो हमारा एक फैमिली रिलेशनशिप है। और राजा आजाद साहब को मेरे वालिद साहब बहुत पसंद करते हैं, और वो भी मेरे वालिद का बड़ा एहतराम करते हैं। जब बाद में वो कस्टोडियन हुए तो मैं मैंने बेसिक सर्विस रावलाकोट की 30-32 साल, तो रावलाकोट मुझे जब जाते थे बीइंग कस्टोडियन तो मुझे ज़रूर बुलाते थे, और वालिद साहब के बारे में, तो हमारा एक बड़ा ताल्लुक है सजाद साहब के लिए। और मैं आपको ये भी बताऊँ, जब मैं वाइस चांसलर मुजफ्फराबाद अपॉइंट हुआ, तो सबसे पहला जो बंदा मुझे मुबारकबाद देने गया वो सजाद साहब। तो इन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी, तो मैं तो रियली मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये मान लो जो रिकॉर्ड या बंगला या उस इलाके की कोई लाइब्रेरी है, ये सजाद साहब क्या भेजना है, नीचे में लिखा हुआ नहीं, ठीक है। मैंने कहा कोई इंग्लैंड चले गए सजाद साहब, या कोई इस्लामाबाद से बैठे मुझे तस्वीर, तो जब इन्होंने बताया तो मैंने कहा हम क्यों नहीं आएंगे, हम जरूर आएंगे, इसलिए कि अगर हमारी किसी इनपुट की वजह से और हमारी किसी थोड़ी सी एफर्ट से ये लाइब्रेरी बेहतर हो जाए, या चंद लोग हमारी चंद किसी बात से मुतासर हो जाए, तो मैं इस बारे में मैं जाता हूँ। मैं चिड़ाला एक दफ़ा वाइस चांसलर बनने के बाद मुझे चिड़ाला के लोगों ने बुलाया, मैं वहाँ गया, बहुत सारे लोग थे, और वो भी एजुकेशन से वाबस्ता ज़्यादा लोग थे, बड़े दूर दूर से उस कांडी के इलाके से टीचर आए थे। एक दफ़ा मुझे नाड़ाकोट बुलाया, और बदकिस्मती से जो तीसरी जगह में आया वो भी तकरीबन एक ही इलाका है, बड़ा बुरी कंडीशन है। तो मैं सच्ची बात आपको बताऊँ, मैं रिपोर्ट से ही मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं रमला का नहीं दबाया, और मैंने किसी रिच के ऊपर, मैं इंग्लैंड रहा हूँ 4-5 साल, जर्मनी रहा हूँ, अभी मैं तुर्की से होकर आया हूँ, बेल्जियम गया हूँ, नीदरलैंड गया हूँ, स्विट्ज़रलैंड गया हूँ,
میں نے ریچ کے اوپر اتنا خوبصورت روڈ مطلب ہے یہ جو سروے ہے روڈ کا اور اتنا خوبصورت علاقہ آج تک نہیں ہے اور اس کی لیفٹ اور رائٹ دونوں پر اور میں آتے ہوئے اچھا مجھے انہوں نے کہا آپ پیر کی طرف سے ہے لیکن میرا شوق تھا کہ میں رنگلے کی طرف سے جاؤں یہ علاقہ دیکھوں اتنا خوبصورت علاقہ جس کی رائٹ اور لیفٹ اور سین ویلیز ہیں جن کو بھی دنیا کا بندہ کا تو متاثر وہ کتنا ایک بدقسمتی ہے کہ نگلیکٹڈ رہا تقریباً اس کے 10 سال ہم نے حکومت کی دیر کوٹ کے لوگ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے ایک دفعہ میں ناڑا کوٹ گیا گیا بڑی تکلیف ہوئی خوبصورت تھے اور یہ میں آپ کو بتاؤں یا ناڑا مقابلہ نہیں کر سکتی بڑا خوبصورت ٹریک ہے جس کو اگر کوئی انڈرسٹینڈ کرے کسی کو ذوق ہو شوق ہو اس کو فیوچر میں بنا سکتے جو بھی چونکہ میں نے کہیں موقع ملے گا کہیں بات کرنے کا ہم لوگوں کو انوائٹ ٹورزم کے لوگ ہمارے آتے رہتے ہیں تو میں ان سے ادھر آنے سے مجھے یہ فائدہ میں آپ کو بتاؤں ٹورسٹ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو میں ان کو ایک اسپاٹ ہے ان کے ساتھ آنے کے لیے میں تیار ہوں آئی ٹی کے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں آپ کے آئی ٹی کی جو بلڈنگ ہے ہمیں پتہ چلا ہے ہم تو کر سکتے ہیں کہ ایک پبلک سیکٹر میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس میں آپ چلیں لائبریری سے آدمی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہم ہر سال تقریباً ہم ایک بک فیئر لگاتے ہیں بک فیئر اور نارملی ہم فیبرری مارچ میں بک فیئر یہ جگہ یونیورسٹی الہٰ میں کرتے ہیں تو آدمی صاحب یہ ضرور کریں گے تو بک فیئر میں پاکستان سے جو بہت سارے بک سیلرز ہیں نا بڑی بڑی کمپنیز کے وہ وہاں ہوتے ہیں تو ان کو ہم مغرور کا وزٹ کریں گے گاڑیوں میں ہم کو دوں گا گیسٹ ہاؤس میں ہم کو تیپور ہم ٹھہرائیں گے وہ آپ کے لائبریری کا وزٹ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو وہ بکس ڈونیٹس کرتے ہیں نا وہ ایک پبلک سیکٹر کر سکتا ہے انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آئندہ لائبریری بک فیئر کی وہ پارٹی ان کو ایک دن ایکسٹرا ہم کہیں گے کہ لے آؤ لاؤ اور وہ ہم ان کو مغرور کا وزٹ کریں گے باقی یہ کام مشکل ہے جو آپ نے یہ ذمہ لیا ہے کہ لوگ لائبریری میں آئیں آپ کو لوگ اس کا اکنالج کریں آپ کو اپریشیٹ کریں اور آپ کا جو مقصد ہے بنانے والوں کا مقصد ہے وہ پورا یہ ہے بڑا مشکل اور چیلنجنگ کا اس کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں یہ مجھے ملے جو لوگ یہ پروفیسر صاحب بھی ملے وہ لائبریرین بھی ملے یہ بڑا اس کی حوصلہ افزائی کوئی تھا جس میں آپ کو کافی مایوسی ہے اور چونکہ یہاں کالج لوگ ہیں اور اسکولس کے آپ اس لائبریری کو فلرش کر سکتے ہیں مطلب لوگ آئیں گے تو یہ انکریج ہوں گے کہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے جس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے جو چلانے والے لوگ ہیں جو ڈونیشن دینے والے لوگ ہیں جنہوں نے لائبریری بنائی ہے تو سب سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے جو کالجز کے ہمارے پرنسپل ہیں جو ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں اسکولس کے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کا کنٹینیوسلی آپ وزٹ کرنا اچھا اس کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ باقی بہت اچھی کلیکشن ہے نو ڈاؤٹ بہت نایاب بکس ہیں لیکن جو کالجی سائڈ پہ فزکس ہے کیمسٹری ہے بایو ہے یہ چیزیں بھی آپ ان کی بھی ایک شرف ہو تو بچے آئیں گے دیکھنے کے لیے اسی طرح اسکول سائڈ پہ تو ہمیں ٹیکسٹ بکس جو ہے نا اس طرح کی کتابیں بھی ہمیں رکھنا چاہیے وہ بھی قاضی صاحب آپ دیکھیں اگر آپ کہیں سے ڈونیشن میں یہ کہہ رہا ہوں آج تک کہ یونیورسٹی جو ہم ان کے کچھ لائے آئی ٹی سینٹر ہے آپ کا جی آئی ٹی سینٹر یہ تو چلنے والی چیز ہے یہ چلنے والی چیز ہے یہ نیڈ آف دی ڈے ہے اچھا میں آپ کو کوئی مہینہ پہلے ہماری پرائم منسٹر پاکستان نے وہ 12-15 وائس چانسلر کو بلایا تھا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اسلام آباد میں یہ جو پرائم منسٹر ادھر انہوں نے ایک خاتون کو رکھا ہوا ہے یہ اسی کام پہ ہماری میٹنگ ہوئی بڑی زبردست انفارمیشن انہوں نے دی انہوں نے ہمیں بتایا کہ پہلے جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو دبئی سے اور مڈل ایسٹ سے ہمارے ہوٹلوں سے لوگوں کو نکال کر بھیج رہے تھے کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں تھی ٹھیک کہ بہت سارا ہمارا جو لیبر تھا جو ہوٹلنگ کے سے وابستہ تھے ان کو مڈل ایسٹ سے باہر نکالا گیا کہ آپ واپس جائیں آپ کے پاس کیونکہ وہاں ایسے تو نہیں کرتے جو لوگ ترقی کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ٹرین لوگ چاہیے پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں سے اسپیشل ٹیمیں گئی قطر میں دبئی میں ابوظہبی میں اور سعودیہ میں جنہوں نے ہمارے اس لیبر کو جا کر ٹرین کیا کہ سرٹیفکیٹس دیے 2-3 مہینے کے لوگوں کی جاب بچی ہے اسی طرح یہ جو بار آپ نے ڈاکٹر والے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو جو کورس آپ آفر کر رہے ہیں یہ نیڈ آف دی ڈے اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں اب ایم فل ایم ایس سی ایون پی ایچ ڈی آپ کو ڈگریوں سے جاب نہیں ملتی دس از دا ایریا پہ لوگوں کو ہم جاب پرووائڈ کر سکتے ہیں تو میرا آپ سے یہ بھی کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ
जो हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में, हमारा एक डायरेक्टरेट है और उसका डायरेक्टर बाद में नईम साहब हैं। मैं आप डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं कि नईम साहब से आपने बात करनी है। मैं जब मुजफ्फराबाद जाऊँगा तो बहुत धंधे स्टार्ट हो जाते हैं कि नईम साहब का एक यहाँ विजिट करवाते हैं। जब आप दोनों आए बात उनको भी ले आए कि हम इनको IT के फील्ड में क्या हेल्प कर सकते हैं, और हमारे साथ जो लोग उस हमारे इन ट्रेनिंग्स को चला रहे हैं या इसको फंड दे रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करवा रहे हैं, तो नईम आपको हेल्प आउट करेगा। आपके जो इधर इंचार्ज हैं उनको भी मुजफ्फराबाद आप भेजें, सजाद साहब उधर ही। अब मेरा आपसे है कि आज तक जो बंदा इस तरह की ट्रेनिंग के लिए, लाइब्रेरी के लिए इस तरह का बंदा मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी के साथ आएगा, हम उसकी राजा सजाद साहब से लाभ लेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। बाकी एक चीज़ मैं हमेशा जहाँ जाता हूँ मैं कहता हूँ और आपसे भी कहूँगा कि बैरिस्टर साहब यहाँ पढ़े हैं, इसाक साहब, यहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की तो वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने आपको ये सेंटर बना दिया। सजाद साहब पढ़े हैं तो ये मुजफ्फराबाद हैं। अल्लाह तबारक तआला ने एक दफ़ा इनको मौका दिया, फिर चांसेस हैं, मौका मिलेगा। दुनिया में सोसाइटी में ऊपर जाने के लिए, पसमानदगी दूर करने के लिए, दुनिया के साथ चलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि तालीम हासिल करें। ये है लंबा सफ़र, बहुत लंबा सफ़र है। बाज़ों का रिजल्ट मिलते हैं, बाज़ों का नहीं मिलते, लेकिन सोल्यूशन इसका यही है। सोल्यूशन इसका यही है कि आप अपने बच्चों को जो आपके पास वसाइल हैं उनको तालीम दें। शऊर आएगा तो लोगों को मिलेगा कि ये सब ठीक नहीं है, आपको सही लगे। शऊर आएगा तो लोग कंपेयर करेंगे। ये कई साहब कहते हैं कि बस्ती में और जो शंकी है उधर सड़कों का एक जाल बना हुआ है, आप गड़की वाले किधर करें। तो ये चीज़ें शऊर से, नॉलेज से आती हैं। अपने बच्चों को तालीम दें। और मैं सलून का रहने वाला हूँ, सजाद साहब को पता है। ये फारूक दादर साहब को एक क्रेडिट जाता है उनकी गवर्नमेंट के, उन्होंने NTS किया, मेरिट पर लोग भर्ती हुए। और मैं आपको बताऊँ चलते चलते कहीं ना कहीं मेरिट आपका काम कर जाता। इस गए गुजरे दौर में मेरी तरह का बंदा भी, इनको पता है मेरी कितनी सवालिश है। जैसे सजाद साहब से पूछ लेना, मैं जब DC बना बाद में लिखा गया खान अब्बासी की सवालिश है, पतन अब्बासी की सवालिश, उर्दू अब्बासी की सवालिश है, लिखा हुआ था मरियम औरंगजेब। अब मुझे समझ नहीं मरियम औरंगजेब किसे आ गई, तो क्या पता चला वो उन्होंने किराए का मकान लेके अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाया। एहसास प्रोग्राम में स्कॉलरशिप के और बेहतर दूसरा एक है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ये दोनों स्कॉलरशिप जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ आपकी रिसोर्सेज हैं कि बंदा गरीब है या उसके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए फीस, इस बुनियाद पर बड़े स्कॉलरशिप। उस स्कॉलरशिप में मेरिट बेस्ड जो यूनिवर्सिटियाँ देती हैं, तो खुदा न खास्ता इल्म के रास्ते बंद नहीं है बिल्कुल। इसको मैं एक जगह, और ये हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये बाग में भी है और ये रावलाकोट भी है, ये मीरपुर में, हर यूनिवर्सिटी में एहसास प्रोग्राम अगर इन्होंने बंद न किया उसमें बेतहाशा स्कॉलरशिप। इसी तरह नीड बेस्ड स्कॉलरशिप वो तो चल रहा है, ऑलरेडी अच्छी सी दे रही है, उसमें हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं। तो जो आपके जाने वाले लोग हों आस पास, कोई गरीब हो, मुस्किन, कोई उसका प्रॉब्लम हो, उनको ज़रूर भेजें। पहले सेमेस्टर की फ़ीस उनको देनी पड़ेगी, उसके बाद हम सारी फीसें और एक्सपेंसेस उनका देंगे। तो आपने ये लिखा है जी मंदोरी इम्तिहानी सेंटर BA BSc गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मालूम कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी हमारी फोर्थ ईयर दी है, 42 ऐसे यदि आइंदा आपका जो भी BA BSc का इम्तिहान होगा मालो रमला, मैं इसकी सर्वे कर दूंगा, इधर सेंटर का मैं ऐलान करता हूँ। मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, ये
हम कर लेंगे। हाँ ये बहुत जरूरी है सर, हमारी बच्चियों का प्रॉब्लम होता आप है सेंटर का नकलें नहीं मारवानी है। कि देखो आप मैं समझ रहा हूँ कि हमारा मुझे आपका जो है ना ये पहला पूरी पूरा पहला सेंटर हो तो डरने वाला नहीं बनाना। आपकी गाड़ी राजे है तो डरने वाला सेंटर नहीं बनाना। एक सरदार साहब ही बैठे। ठीक है, तो इसको आपने इधर नकल शक्ल नहीं मारवानी। नहीं और सही करना है तो जो भी आज का एग्जाम होगा वो आपका सेंटर हम देख लेंगे कि आप जो सजाद साहब से मशवरा कर लें, रंगला करना है मालूम करना है, हम एक जगह जो आपका हाल अच्छा हो अच्छा। ये थोड़ी मरकजी एतबार से भी सजाद साहब कहेंगे जी जो कहेंगे वही होगा सेंटर, लेकिन आज तो आपका एग्जाम इस रीजन में होगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप सबको बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें, सजाद साहब के लिए हर वक्त जब बुलाएंगे हम आएंगे। अगली दफा जब मैं आऊँगा आपके पास, मैंने रमला देखा है, बहुत खूबसूरत जगह है, उधर भी मैंने वादा किया कि एक रात इधर लगाएंगे, आपका दोस्तों से मिलेंगे। तो आदमी साहब जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे कुछ चीज़ें आपके लिए इंशाअल्लाह सर, इंशाअल्लाह। टेक्स्ट बुक है, जो बुक सेलर्स हैं हमारे पास कंपनी से हमारा मतलब है, इस लाइब्रेरी को और इंक्रीज करेंगे। इन्होंने आपको बताया है कि उसका सॉफ्टवेयर उसको जी सर, सारा इंस्टॉल करवा के देंगे सर, सब कुछ। ये आपको करना चाहिए। चीमा हाँ मैंने सोचा था पहले इसी में कर सोचा, तो इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे और आपके साथ एक रास्ते का जरिया भी रहेगा इंशाल्लाह। तो सजाद साहब आपने बिल्कुल ठीक पकड़े, जब जहराबाद बैठे हुए हैं, मेरा आपसे वादा है IT के जो लोग आएंगे सजाद साहब से उनकी अलग मीटिंग करवाएंगे, तो ये जो कोर्सेज हैं, ये जो जगह है ना, ये चलेगी और ये बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी यहाँ के यंग बच्चियों और बच्चों के लिए, इसको हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह लाइब्रेरी वाले जब आएंगे तो इनके साथ जो जस्टिस भी रहे हैं, इनके साथ उनकी एक मीटिंग करवाएंगे और एक दिन के लिए हम उन्हें लाएंगे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सेंटर दुआ आपको फरमाए। जिन्होंने कहा या अल्लाह उनको भी इसके पूरा पाए तकमील तक जो है वायदे किए पाए तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे सजाद साहब ने जिनको ये दावत दिया है, सजाद साहब को भी दिन दुगनी रात चुगनी सेहत और कामयाबी नसीब फरमा। या अल्लाह इस इदारे को जिन्होंने ये जगह वक़्फ़ किया बाबू अब्दुल अजीज साहब, उनको करोड़ों रहमत उनकी कब्र में नाज़िल फरमा। जिन्होंने मेहनत की या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह तो हम सबसे राज़ी हो जा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।